हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 न्यू इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड लीडर्स, जिसका हम यूनिट 2.1 आई हैव अ ड्रीम अ स्पीच बाय जूनियर मार्टिन लूथर किंग की एक्सरसाइजेस 1, 2, 3, 4, 5 डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि मैं यूनिट 2.1 डिटेल में आपसे डिस्कस करूं, आपको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। यूनिट 2.1 रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल, प्री रीडिंग एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में दो क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो एनी वर्ल्ड लीडर? क्वेश्चन 2, टेल द कंट्रीब्यूशन सक्सेस अचीवमेंट ऑफ द लीडर। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। डू यू नो एनी वर्ल्ड लीडर? आपको किसी भी एक वर्ल्ड लीडर का नाम लिखना है, लेकिन मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं। हिस्ट्री हैज विटनेस्ड मेनी रिमार्केबल वर्ल्ड लीडर्स सच एज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्राहम लिंकन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, सद्दाम हुसैन, किंग फैसल। आपको कोई भी एक लीडर का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, टेल द कंट्रीब्यूशन सक्सेस अचीवमेंट ऑफ द लीडर। जिस लीडर का नाम आपने क्वेश्चन 1 में लिखा है, उसी की अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन, सक्सेस आपको क्वेश्चन 2 में डिटेल में लिखनी है। अब जो मैंने लिखा है, बहुत सारे लिखे थे, लेकिन मैंने जो सिलेक्ट किया है हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अब जो कंट्रीब्यूशन, सक्सेस, अचीवमेंट है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ही वॉज अ मर्सी फॉर ऑल मैनकाइंड। He was the epitome of the best character. He transformed the social status of slaves, women, and the downtrodden. He introduced the first charter, Treaty of Hudaybiyah. His last sermon is filled with timeless advice, emphasizing the message of equality, no discrimination on the basis of race or color. तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2, वर्क इन पेयर्स एंड राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में दिए गए हैं। आपको इनकी मीनिंग लिखनी है। मैंने वन वर्ड मीनिंग लिखी है, आप चाहे तो पूरी सेंटेंस डिटेल में भी लिख सकते हैं। नंबर 1, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन की मीनिंग है सेपरेशन। नंबर 2, discrimination, it means bias. Number 3, liberty. Liberty means freedom. Number 4, equality. Equality means sameness. Number 5, righteousness means virtue. Number 6, operation. It means cruelty. Number 7, despair. It means hopelessness. Number 8, dignity. It means respect. Number 9, exile. It means banishment. Number 10, symphony. It means music. अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, जो कि एमसीक्यूज हैं। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 आइटम, इन द स्पीच जूनियर मार्टिन लूथर किंग डिस्क्राइब्स an ideal future for his children as dash. Correct option is C, no discrimination. Number 2 item, Dash is junior Martin Luther King's vision in his dream. Correct option is B, justice for all. Number 3 item, where did Martin Luther King deliver the I have a dream speech? Correct option is B, Lincoln Memorial. Number 4 item, when was the I have a dream speech delivered? Correct option is C, August 28, 1963. Number 5th item, the phrase let freedom ring symbolizes. Correct option is B, equality for all. Item number 6, what is King's stance on violence? Correct option is C, rejects violence. Number 7 item, what does table of brotherhood mean? Correct option is B, social harmony. Number 8 item, what is the overall tone of the speech? Correct option is hopeful and determined. Number 9, last item, the main theme of the speech is. Correct option is B, demand for racial equality and justice. Exercise number 4, answer the following questions after reading the text. Exercise number 4 में 7 questions दिए गए, जिनके आंसर्स अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
How does Martin Luther King describe the current condition of African Americans despite the promises made a century earlier? Answer. Junior Martin Luther King explains that African Americans are still suffering under racism and inequality, even though they were promised freedom 100 years earlier. He uses imagery of isolation and poverty to show that they haven't yet gained true equality or the same opportunities as others. बेसिकली इसमें बताया गया है कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने डिस्क्राइब किया है कि वो चाह रहा है कि जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको राइट्स जो कि देने चाहिए वो नहीं दिए गए हैं और अभी तक वो आइसोलेशन और रेसिज्म किए हैं और उनमें इक्वलिटी पाई जाती है, तो उनकी कंडीशंस अभी भी सही नहीं है। जो पहले कंडीशन थी वही अभी हैं और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट रेसिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग मीन व्हेन ही सेज नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ segregation to the sunlit path of racial justice? Answer. Junior Martin Luther King is calling for immediate efforts to leave behind the pain and injustice caused by segregation. He urges people to move toward fairness and equality, symbolized by the bright and hopeful path of racial justice. अब इसमें बताया गया है कि जो जूनियर मार्टिन लूथर किंग है वो ये कह रहा है कि अभी भी टाइम है कि हम उस चीज़ से फाइट करें, क्योंकि जो पेन और इनजस्टिस है वो बहुत है और डिस्क्रिमिनेशन है, तो इसीलिए अभी टाइम है कि हम अपनी एफर्ट्स पुट करें ताकि इनजस्टिस और इनइक्वलिटी खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज मार्टिन लूथर किंग emphasize that the struggle for equality must be conducted with dignity and discipline? अब इसमें पूछा गया है कि क्यों जो है जूनियर मार्टिन लूथर किंग चाह रहा है कि जो स्ट्रगल है वो इक्वलिटी के साथ डिग्निटी और डिसिप्लिन में कंडक्ट की जाए। इसका आंसर है जूनियर मार्टिन लूथर किंग हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल प्रोटेस्ट। He believes that staying calm and focused gives the movement strength and credibility, helping it gain wider support and achieve lasting results. अब इसमें बताया गया है कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने एक इम्पोर्टेंस बताई है कि जो हमारा प्रोटेस्ट हो वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से हो और हम अपने राइट्स के लिए लड़ें और अपने राइट्स हासिल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द फ्रेज जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर्स deepen the emotional impact of the speech? Answer. This metaphor creates a powerful image of justice as something natural, strong, and unstoppable. It adds emotional weight to his message by suggesting that fairness will eventually triumph. Question number 5, what message does Martin Luther King convey to his listeners through his speech? क्वेश्चन 5 का मतलब ये कि ये जूनियर मार्टिन लूथर किंग की जो हिस्टोरिकल स्पीच थी तो इसका क्या मैसेज है? आंसर. जूनियर मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्स अ पावरफुल मैसेज ऑफ होप, यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन. He shares his vision of a future where people are valued for who they are, not their race. He encourages non-violent resistance and perseverance in the fight for civil rights. Question number 6, what role does hope play in Martin Luther King's speech and how does it influence the audience response? अब ये जो स्पीच है जूनियर मार्टिन लूथर किंग की, इसमें इसने किस तरह होप बयान की है या होप का क्या किरदार है, उम्मीद का क्या किरदार है और लोगों को किस तरह रिस्पॉन्स करती है और लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है? आंसर. Hope is a driving force in King's speech. By presenting a positive future, he inspires people to keep fighting for justice. His hopeful tone encourages listeners to stay strong and united in their push for equality. जब ये आप स्पीच पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें बहुत सारी दफ़ा यूज हुआ है आई होप आई होप आई होप, तो इसका मतलब है कि होप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in Junior Martin Luther King's speech and it really influenced the people. Question number 7, how does Martin Luther King use contrast between past injustices and future hopes to strengthen his argument? अब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने ये बताया कि पास्ट में किस तरह इंजस्टिस होता था और फ्यूचर में वो किस तरह होपफुल है। आंसर.
King highlights the pain and unfairness of the past and compares it to the dream of a fair and equal future. This contrast makes his message more powerful, showing why action is needed and what can be achieved if people work together. Exercise 5. Read the statements on Martin Luther King's speech in column A and write true or false in column B. अब कॉलम ए में जूनियर मार्टिन लूथर किंग्स स्पीच की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आपको ये पढ़ के बताना है, अगर स्टेटमेंट सही है तो आप कॉलम बी में लिखेंगे ट्रू, अगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आप लिखेंगे फॉल्स। नंबर 1, मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड दिस स्पीच इन वॉशिंगटन डीसी, तो ये होगा ट्रू। नंबर 2, द स्पीच आर्ग्यूज फॉर द सुपीरियरिटी ऑफ वन रेस ओवर अनदर, तो ये होगा फॉल्स। नंबर 3 आइटम, मार्टिन लूथर किंग कंपेयर्स इनजस्टिस टू स्वेल्टरिंग हीट, तो इसने इनजस्टिस को स्वेल्टरिंग हीट से कंपेयर किया है, तो ये सही है या नहीं? तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वेल्टरिंग हीट का मतलब है जो हद से ज्यादा नाइंसाफी हो, इनजस्टिस हो, इनइक्वालिटी हो, तो ये होगा ट्रू। नंबर 4 आइटम, द फ्रेज आई हैव अ ड्रीम इज यूज्ड वन टाइम इन द स्पीच, तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि आई हैव अ ड्रीम जो फ्रेज है वो बहुत दफा यूज हुआ है। Number 5 item, the speech emphasizes the importance of peaceful protest, तो ये होगा true। Number 6 item, Martin Luther King says that segregation has already been abolished, तो ये होगा false, क्योंकि जो segregation है, inequality, injustice अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो ये होगा false। Number 7 item, let freedom ring is repeated several times in the speech, अब ये जो let freedom ring ये phrase है तो ये स्पीच में बहुत दफा यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये होगा ट्रू। नंबर 8 आइटम, मार्टिन लूथर किंग स्टेट्स दैट रेशियल जस्टिस विल हैपन नेचुरली विदाउट एक्शन, तो ये होगा फॉल्स। नंबर 9 आइटम, द स्पीच रेफर्स टू द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये होगा ट्रू। नंबर 10 आइटम लास्ट, मार्टिन लूथर किंग इनकरेजेस वायलेंस एज अ मींस टू अचीव जस्टिस, ये होगा फॉल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 मैनेजिंग स्ट्रेस एंगर एंड पीपल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूनिट 3.1 कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रांड रसल, जिसकी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है जो मैंने आज यूनिट 2.1 आई हैव अ ड्रीम अ स्पीच बाय जूनियर मार्टिन लूथर किंग की एक्सरसाइजेस डिटेल में आपसे 1 2 3 4 5 डिस्कस की। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।